पिछले द्वार को हमने लेवी व्यवस्था का पुस्तक का 6वां अध्याय से 12वां वचन पढ़े थे. We read on the other day from the book of Leviticus chapter 6 verse 12. वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए. The fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning. याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर कर दे. वेदी पर आग लगातार जलती रहे. Fire shall be kept burning on the altar continually. It shall not go out. और कभी बुझना नहीं चाहिए. वेदी पर हमेशा अग्नि जलते रहना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का अग्नि है, अन्य अग्नि नहीं है. That is no strange fire. The fire on the altar is the heavenly fire. वो स्वर्गीय अग्नि है. യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കത്തുന്ന അഗ്നി അന്യ അഗ്നിയല്ല, അത് യഹോവയുടെ അഗ്നി അത്രേ. അത് അണഞ്ഞു പോകുവാൻ പാടില്ല. ദിവസം തോറും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അടുക്കി അടക്കി നാം മരം വെക്കണം. Logs, fresh logs will have to be kept on the altar every day so that the fire does not go out. തടി കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിലെ അഗ്നിയെ നാം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. रोज लकड़ा लगाना है वेदी के ऊपर, अग्नि बुझने नहीं देना है. यह याजकों का काम है. यह अग्नि नहीं बुझना है, यह परमेश्वर ने जलाया है. पृथ्वी का आरंभ में हमने सुना जब पृथ्वी बड़ोल था और अंधकार छाया था. When this earth was lying in ruins, shapeless and void, plunged in darkness, the Lord said, "Let there be light." ज्योति हो जाए. ज्योति को सृजाया नहीं, ज्योति प्रत्यक्ष हुआ. He was not creating light. He said, "Let there be light." And the heavenly light entered the universe. स्वर्गीय अग्नि प्रकट हुआ. The light was revealed. Hallelujah. That was the beginning. वह है शुरुआत, हमारे इतिहास का शुरुआत. That is the beginning of our history on earth. Let there be light. Let it never be put out. ये कभी बुझना नहीं चाहिए. ऐसा परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. हमने भजन में से देखा, मैं जैतून वृक्ष के समान, हरे भरे जैतून वृक्ष के समान हो. ऐसे हमने पढ़ा कि तेल की कमी नहीं होगी. और परमेश्वर के भवन में जो दिया है वो कभी बुझेगा नहीं. That the lamp of God may never be put out. There will be such sources of oil, olive tree, green, healthy olive trees in the house of the Lord. Hallelujah. That the lamp of God is never put out. परमेश्वर के भवन के जो दिया है, दीपक है, वो कभी नहीं बुझना है. और वेदी का अग्नि भी कभी नहीं बुझना है. ये वेदी का अग्नि को जलाकर रखना है. ऐसा लगा कि परमेश्वर का अग्नि बुझ गया. आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर की महिमा का जो वस्त्र था उनका, वो उन्होंने नष्ट कर दिया. Adam and Eve would forfeit the covering of glory, the robe of glory, when they sinned. Apparently, this light was about to be put out. ये ज्योति मिटने पर था, ऐसा हमें लगता. तीसरा अध्याय उल्पत्ति का, Genesis chapter 3 verse 23rd verse. इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था.
Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He was pushed to the cursed land, away out of the Garden of Eden. आदम की बारी से उनको निकाल दिया गया और उनको जमीन पर, ये श्रापी जमीन पर कार्य करने पर लगाया। ऐसा लगा कि सब कुछ मिट गया। इंसान के ऊपर से परमेश्वर के एहसान जो है वो उतार दिया गया। The favor of God has departed from man and the light was about to be put out. ऐसे हमें लगता। We move on from there. उसके बाद हम पढ़ता 6वां अध्याय का 6वां वचन, 6th chapter 6th verse। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अधिक खेदित हुआ। Look at the heart of God. The Lord was very sorry that he had made man on the earth and it grieved him to his heart. परमेश्वर का हृदय खेदित हुआ। There was such turmoil in the heart of God. परमेश्वर के हृदय में इतना परेशानी हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। इंसान के हृदय को देखकर, उसका कठिनाई को देखकर परमेश्वर नाराज होता। बीच में एक आशा का किरण था, उसको हम पढ़ा नहीं। इनोस के समय में आराधना शुरू हो गया, अग्नि जलने लगा, आराधना के साथ बलि चढ़ाया जाता। शेत का बेटा, the son of Seth, Enos, would start the worship again. Again there will be fire on the altar. वेदी पर अग्नि जलने लगा। मैं विश्वास करता, there is no authority in the word of God for that. I can't prove it on the basis of the word of God. कि हाबेल ने बलि चढ़ाया तो मैं विश्वास करता स्वर्ग से अग्नि उतर कर आया, वहां लिखा नहीं है। जो मैं अनुमान करता, why I go for this wild guess is because it is written there that God was pleased with the sacrifice. How would they know that God was pleased? I believe that his sacrifice was burned with a fire from above. It's my guess. I do not know. पर मैं विश्वास करता वहां अग्नि जलने लगा, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। इधर लिखा है आबेल से वो प्रसन्न हुआ क्योंकि वह ऐसा बलि चढ़ाया गया है, वो बलि से वो प्रभु प्रसन्न हुआ। आमीन। लेकिन बाद में जगत इतने खराब हो गया। The earth was so corrupted later on. And we read about it in the 6th chapter. वहां यहोवा कहता, मनुष्य को सृजाने से मैं पछता रहा हूं। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। Look at the heart of God. So disturbed, so perturbed, so broken he was because he created man. उसका 5वां अध्याय से 19वां वचन हम पढ़ते हैं। मैं गलत लिखा, 5 में बाद में जाता, माफ करना। 5 का 29th वर्ष, 5 का 29 ऐसा है, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। He called his name Noah, saying out to the ground, the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. ये मुझे पहले पढ़ना। परमेश्वर ने इंसान को बारी से बाहर कर दिया और उनको कहा कि यहां ये कटी जगह में, ये सूखा भूमि पर यत्न करो, परिश्रम करो। लेकिन लामक कहता नहीं, अभी एक बेटा जन्म लेने वाला है। हालेलुया, वो हमें शांति देगा। हालेलुया, once again God's favor will be upon us. That is what they believed. Hallelujah. The birth of Noah would give them peace and comfort. He will comfort them. Amen. Will he comfort the heart of God? वो लामेक को और घराने को वो शांति देने वाला है, लेकिन परमेश्वर को सांत्वना देने वाला मनुष्य है क्या यह? हम आगे पढ़ते, हम उसका 8 में पढ़ता है। We look into the 8th chapter of Genesis and read 21st verse. इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। And when the Lord smelled the pleasing aroma
The Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. Look at God's heart. Once again it was comforted. Amen. Amen. उसका हृदय को सांत्वना मिला और एक बार वेदी पर अग्नि जलने लगा, सही अग्नि जलने लगा, खुशबूदार बलि चढ़ाया गया। हालेलुया। वेदी पर से अग्नि कभी नहीं बुझने देना है। आमेन। Fire on the altar shall never be put out, should never go out. Once again the fire was kindled on the altar, the right fire with a fragrant offering. Hallelujah, hallelujah. हम देखते हैं सृष्टि का आरंभ से देखते हैं सृष्टि को बनाकर रखने के लिए कुछ लोग खड़ा हो गया था। Amen. To ensure continuity of creation and the history of mankind, there were people, amen, arising at different points of time who will burn the right fire on the altar, who will please the heart of God. Hallelujah. Who would rather comfort God. परमेश्वर को सांत्वना देने वाले अनेक पुरुषों में यह है नोआ। हालेलुया। उसने सही बलि चढ़ाया, उसको खुशबू से प्रभु प्रसन्न होकर शब्द खाकर कहता, मैं अभी ये पृथ्वी को और मनुष्य को पूरा पूरा भाड़ से मिटाऊंगा नहीं। I will never again destroy the earth along with the inhabitants by flood, through flood waters. Amen. He was comforted. Hallelujah. He was so pleased with his sacrifice and with his fire that was once again burning on the altar. 11वें अध्याय में आते हैं। कोई नई बात हमने कहता, बोर होते जाएगा तो माफ करना मुझसे। 8वां वचन पढ़ते 11 का। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। So God once again, therefore, इस कारण इसलिए यहोवा, सॉरी मैं क्या पढ़ता हूं, 11 का 8th वर्स। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को ऊपर फैला दिया। So the Lord dispersed them from there over the face of the earth and they left off building the city. तो निम्रोद और कंपनी वो लोग बड़े बाबेल का टावर बना रहा है, ऐसा बड़ा एक मकान बना रहा है क्योंकि उन्हें इकट्ठा रहना है। परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी पर फैल जाओ। इस कारण परमेश्वर अति दुखी हुआ और क्रोधित हुआ, इसे हम कहते हैं कि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने वो काम को देखकर क्रोधित हुआ और वो कहा कि मैं देखता हूं कि सबकी दल के है और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है और अब जो कुछ वो करने का यत्न करे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अभी हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ कर रहा है, चलो आइए। त्रय परमेश्वर कहता, द ब्लेस्ड ट्रिनिटी डिसाइडेड ही विल गो, दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय देयर वर्क। आमेन। परमेश्वर को नाराज करने वाली अनेक घटनाओं में से एक घटना यह है। उसके बीच में हम देखते 12वें अध्याय में तो उनको तितर पितर कर दिया। परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला एक पुरुष नहीं रहा। नूह ने उसका हृदय को आनंदित किया था, सही अग्नि जलाया था, लगी कि अब ये पुरुष नहीं है। It should go on. Hallelujah. The torch should get passed on. Hallelujah. It should not be put out. Hallelujah. दीपशिखा बुझना नहीं चाहिए। Hallelujah. दीपशिखा को आगे लेके जाने के लिए परमेश्वर लोगों को खोजता है। Amen. God is looking for such people who will arise to carry this torch. Hallelujah. For the generations to come, so that the lamb of God is not put out, the fire on the altar is not put out. वेदी को ऊपर से अग्नि न बुझाए जाए, परमेश्वर की दिया का ज्योति न बुझाए जाए। हम आगे बढ़ता 12वें अध्याय में आता। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. He has spotted a man who will obey. Hallelujah. Though he was a craftsman making all kind of idols. वो हर तरह की विग्रह बनाने वाला, मूर्तियां बनाने वाला आदमी था, अति संपन्न था। He was well settled there. बट प्रभु ने कहा, तू उठो, सब कुछ छोड़ो, मेरे लिए आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का आह्वान वो रहा। उसको कहा कि सब कुछ तू छोड़ो, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। आई एम लुकिंग फॉर ए मैन हु विल बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग।
like a green olive tree. Amen. I'm looking for a man who will light the right fire on my altar. Hallelujah. मेरी वेदी पर सगी अग्नि जलाने के लिए. Amen. मेरी जो योजना है उसको पूरा करने के लिए मैं सहकर्मियों को ढूंढता है. I'm looking for co-workers, collaborators who will stand with me and take this work forward. Man, God was looking for a man. He found a man. तुझे मैं आशीष का मूल बना दूंगा. I will make you a blessing. I will bless those who bless you. Hallelujah. And those who dishonors you, I will curse. So Abraham went. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला. वचन के अनुसार चलने वाला, सब कुछ छोड़कर, जितना भी कीमतीमान चीज क्यों ना हो, जितना भी हृदय से चिपकने वाले चीज क्यों ना हो, वो छोड़कर परमेश्वर के कहने पे निकलने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करता, खुश करता, परमेश्वर को सांत्वना देता. They are the people who comfort the heart of God, who delight the heart of God, willing to leave everything behind, however precious and valuable, however close and dear to their heart those things were. They will go at His command. Hallelujah. He found a man. Hallelujah. God's work continues. God's plan of redemption is never thwarted. परमेश्वर के उद्धार का काम जारी है. हालेलुया. एक मनुष्य हालेलुया खड़ा हो जाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर को आनंदित करने वाला, परमेश्वर के कहने पर चलने वाला, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ देने वाले, हालेलुया, हालेलुया, खड़े हो जाते हैं. Such people who say amen to God's will walk with Him, leaving behind everything. Hallelujah. So that the work, the redemptive work continues. The fire keeps burning. Hallelujah. The lamp is never put out. हम आगे बढ़ता है. उसके 14 अध्याय में हम ऐसा पढ़ता है, 14th chapter of Genesis 23rd verse. उत्पत्ति 14 अध्याय 23वां वचन. उसकी मैं यह शब्द कहता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ. Hallelujah. Abraham said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, the Most High God, possessor of heaven and earth, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. I refuse to be made rich by the worldly and by the world. संसार से और संसार के लोगों से मैं संबंध नहीं बनना चाहता. My springs are in Him. Amen. He is my source of blessing. Amen. मेरे सारे अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर है. इसके लिए वो सदोम के राजा को कहता है कि मैं कुछ नहीं लूंगा. आमेन. नॉट इवन ए थ्रेड, एक धागा भी मैं नहीं लूंगा. आमेन, आमेन. मैं परमेश्वर से पाऊंगा, वो मेरी हिस्सा है. He is my portion. Hallelujah. He will choose for me and I will delight in Him. कितना प्रसन्न हुआ परमेश्वर. 15 का पहला वचन, 15th chapter 1st verse. You know it much more than I do. उन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. I gift myself to you, Abraham, my glory, hallelujah, my presence. भजन संगीता में हमने पढ़ा, this is what the psalmist was craving after. Hallelujah. His glory and His abiding presence. I will go with you, Abraham. I will be your shield and your exceedingly great reward. Such people will please the heart of God. Oh, what a comfort God would have derived from this man and his attitude. हमें ये मनुष्य के मनोभाव से, ये मनुष्य के कारण परमेश्वर कितना सांत्वना पाया, कितना आनंदित हुआ. There are some people who will comfort the heart of God. परमेश्वर को सांत्वना देने वाला, परमेश्वर को आनंदित करने वाला कुछ लोग होते हैं. Hallelujah. The salvation plan, the redemption plan of blessing the universe will continue. सारे पृथ्वी के ऊपर आशीष बरसाने के लिए, सारे संसार के पाप को माफ कर संसार के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का जो उद्धार की योजना है
वो जारी रहेगा. It will continue. Hallelujah. The fire will not go out. We move on from there and look into 45th chapter. 45 में नजर डालता, 7वां वचन पढ़ता. इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो. God sent me before you to preserve for you a remnant on earth. परमेश्वर के जन पूरा पूरा ना मिट जाए, इसके लिए यूसुफ को भेजा परमेश्वर ने. भाइयों ने नहीं बेचा. His brothers did not sell him, but God's spirit led him. भजन में पढ़ा, he was like a beast. एक जानवर सा था, उसका हालत कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन परमेश्वर अगुवाई देकर चलाता रहा. God was leading him by his counsel to lead him to glory. जैसे हम भजन में पढ़ा, Amen. You will finally glorify me. You are leading me to glory, though I know not and I knew not. मेरा समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं समझता हूं कि प्रभु ने मुझे लेकर आया. That God's people do not get wiped off. परमेश्वर के जन मिटाया ना जाए. उद्धारक को आना है. Jesus has to come. From the Hebrews, from the Jews. परमेश्वर के जन से ही यीशु को आना है. मिटना नहीं चाहिए. Amen. He found a Joseph through whom you could keep this lamp burning like an olive tree. Amen. He found Joseph who would keep the fire going on, burning on the altar. वेदी पर अग्नि निरंतर जलते रहने के लिए है. परमेश्वर का दिया कभी नहीं बुझने के लिए है. एक मनुष्य को पाया, वो जैतून के वृक्ष के समान, वेदी पर लकड़ा लगाने वाले मनुष्य के समान. हालेलुया. लकड़ा उसने लगाया, उसका शरीर था वो लकड़ा. आमेन. He kept keeping wood and he kept the fire going. आमेन. वो लकड़ा उसका शरीर था. इतना कष्ट सहकर, इतना पीड़ा सहकर, इतना निंदा सहकर, हालेलुया, कारागृह में भी दिन बिताया उसने. He suffered shame and reproach, and he suffered affliction, and also he will be locked up in the dungeon. Hallelujah. That was the wood on the altar. The fire should go on. He looks for people who will keep the fire burning on the altar. Amen. हम आगे बढ़ते हैं. हम वहां से 45 से आगे बढ़कर उत्पत्ति पुस्तक से बाहर निकलने से पहले एक वचन पढ़ता. 50 का 24. Chapter 50 of Genesis and read verse 24. यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा. Hallelujah. I am about to go, said Joseph, but the Lord will indeed visit you. For sure he will visit you and bring you out to this land, to the land that he swore to Abraham. Hallelujah. अब्राहम के साथ उसने जो वायदा किया था, वो देश में तुझे वो पहुंचाएगा. अब तो मिस्र देश में है, मैं जानता हूं. ये पराया देश है. यू आर कंफर्टेबली सेटल्ड, आई नो. यहां आराम से रहता है, लेकिन ये तुम्हारा देश नहीं है. डियरली बिलवड, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड. हम ये दुनिया का नहीं है. ये हमें याद दिलाने वाला यूसुफ के लिए धन्यवाद. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते. वी नीड योसेफ सर. We need Joseph to remind us always, even when we are comfortably settled. We need Joseph to remind us that we do not belong here. We need Joseph to rekindle this fire of hope in us. हमारे भीतर ये आशा की अग्नि को जलाने वाला यूसुफ चाहिए कि हम हालेलुया स्वर्गीय कनान में पहुंचाया जाएगा. You shall carry up my bones from here. मेरा हड्डी को भी इधर नहीं छोड़ना. हालेलुया. ये हमारा देश नहीं है. We don't have our roots here. Amen. हमारा जड़ यहाँ नहीं पकड़ते हैं. हम यहाँ का नहीं है. ये वृक्ष परमेश्वर के भवन के वृक्ष है. Hallelujah. This olive tree does not belong to this world. It is planted in the house of the Lord. Hallelujah. I am headed towards the glory land. Hallelujah. हड्डी भी नहीं बने रहना. I don't want any entanglement here. I don't want any attachment to the world. दुनिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है. दुनिया में मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता. ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता. हम निर्गमन के पुस्तक में आता. माफ करना, मैं बहुत परिचित भाव पढ़ते हैं और सुनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ
आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग, मैं मेरा मन को परखता है और मैं अपने आप को याद दिलाता है कैसे लोग खड़े हो गया अग्नि को जलाकर रखने के लिए और दिया को जलाकर रखने के लिए, और परमेश्वर को सांत्वना देने वाले लोग ये थे। निर्गमन चैप्टर 1 एंड वी रीड 20-21। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। God dealt well with the midwives. The people multiplied and grew very strong. Hallelujah. वहां के नर्स लोग थे कि वो लोग प्रसव के समय में मदद लेने के लिए जाया करती थी, और ये राजा का नियम था, आज्ञा था, वो लोग जाए, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको तुरंत खत्म कर ले उधर ही। तो द मिडवाइव्स वर actually commanded that they would go and help with the delivery of the Hebrew women, and if it happens to be a boy, they should immediately kill that child. And because the midwives feared God, he gave them families. Hallelujah. इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उसके गर्भ बसाए। God wanted to preserve his people. परमेश्वर को उसको जन को सुरक्षित रखने के लिए, उसका गिनती बढ़ाने के लिए, उसको एक सेना के तरह बनाने के लिए, God wanted to make his people, transform his people into a mighty army. He wanted them to multiply, their numbers to increase. उसकी संख्या बढ़ने के लिए परमेश्वर को ये दाइयों की मदद चाहिए था। आमेन। He took the help of these midwives in inverted commas. Amen. And they were greatly blessed. We do not preach about these midwives anymore or much. हम ये दाइयों के विषय में बहुत कुछ बोलता नहीं है, प्रचार नहीं करता, लेकिन they glad in the heart of God. Hallelujah. Am I like these midwives at least? Amen. Who will preserve the church of God. परमेश्वर की कलीसिया को सुरक्षित रखने के लिए मैं काम में आएगा क्या? परमेश्वर के जन की देखभाल करने के लिए, मिटने से बचाने के लिए मैं काम में आएगा क्या? हमें हम आगे बढ़ते वहां से दूसरा अध्याय। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। A Levite couple, they gave birth to a son, and they knew that the glory of the Lord was on the face of this child. He was chosen for a purpose. माता पिता को पता चला, मूसा का माता पिता को पता चला यह लड़का चुना हुआ लड़का है, एक महान उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ लड़का है। उसके मुंह पे उन्होंने वो महिमा को देखा, उन्होंने उसको छुपाया। राजा का आज्ञा था, it was the law of the land concerning the Jews, that if a boy is born to them, he should be immediately thrown into the river Nile or killed. ऐसा नियम बनाया था राजा ने, हुक्म था, but they would dare preserve the life of the child. ये लड़का को उन्होंने संभाल के रखा 3 महीने तक। हालेलुया। परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ, इसलिए इब्रानियों के पुस्तक में उसकी चर्चा की जाती है। In Hebrews 11 we read about them. They feared not the decree of the king, and they would hide the child for 3 months. बाद में उसके बाद जब उसको छिपा नहीं सका, तब सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ दिया। They would keep the child in a basket made of bulrushes and coated with bitumen and pitch. Put the child in it, placed it among the reeds by the river bank. Hallelujah. They should have thrown the child into the river as per the order of the king. राजा के हुक्म के अनुसार वो लोग ये बच्चे को नदी में फेंकना चाहिए था। फेंका जरूर, लेकिन टोकरी में रखकर फेंका।
Amen. Give a chance to God to work among His people, to preserve the lives of God's people. Stand with them. परमेश्वर का साथ दो, परमेश्वर के संग बने रहो, ताकि परमेश्वर के जन, परमेश्वर की कलीसिया सुरक्षित बने रहे, प्रगति पाए, बढ़ते जाए और सिद्ध किए जाए. That the church may grow and get perfected. Let men and women stand as co-builders with Christ, with God, helping. Hallelujah. Inverted commas. उसकी सहायता में खड़े हो जाओ. आमीन कहने वाले को प्रभु ढूंढता है. कितना खुश हुआ, दाइयों ने खुश किया, मूसा का माँ बाप ने खुश किया परमेश्वर को. हम वहां से आगे बढ़ता, तीसरा अध्याय का 4वां वचन पढ़ता. Chapter 3 verse 4. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मूढ़ा चला आता है, परमेश्वर ने झाड़ों के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा. He found the man. When Moses cared to turn and see the fire in the bushes, hallelujah, the fire of God, amen, वो देखने के लिए मूसा मोड़ कर आता. Someone who cares, amen. He found his man. स्वर्ग ने अपने मनुष्य को देखा, मनुष्य को पाया मूसा में. बाकी सब इतिहास है, amen. बाकी सब हम जानते हैं. उसने पाया, मूसा को कहते हैं, मूसा, you are the man, Moses. Though you have a stammering tongue, you are the man. Though you think that you are not an accomplished man, you are the man. Though you think that you are a defeated man, you are the man. Because you care to look at the fire of God. स्वर्गीय अग्नि की ओर ध्यान से देखने के लिए तूने ही नजर उठाया, दूसरा किसी ने नहीं किया. तू अपने आप को कमजोर समझता, बिल्कुल निकम्मा समझता, पराजित समझता, तोतला है, कुछ भी हो, तुम मेरा मनुष्य है. हालेलुया. तेरे द्वारा उद्धार का काम जारी रहेगा. I will employ you. Hallelujah. For my redemptive work, you will go on my behalf, speak on my behalf. तेरे ओर से तू जाओगे, तुम मेरे लिए मुंह बनोगे. Hallelujah. मेरे जन को तुम छुड़ाओगे. How comforted God was. You have found a man like Moses. मूसा की तरह एक मनुष्य मिला. परमेश्वर कितना सांत्वना पाया. What a relief to God. Hallelujah. कितना खुशी की बात है परमेश्वर के लिए. 14 अध्याय में आता, 14 chapter 21-22 of Exodus itself. निर्गमन का ही 14 अध्याय से हम 21-22 पढ़ते हैं. मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया. यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करने को जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि होगी. Moses stretched out his hand over the sea. The Lord drove the sea back by a strong east wind all night, made the sea dry, and the waters were divided. This frail old man will stretch out his hand, hallelujah, pointing his rod to the ocean. समुद्र की ओर लकड़ा उड़ाते हुए मूसा हाथ बढ़ाकर खड़ा हुआ, हाथ उठाकर खड़ा. With the enemy fast approaching from the rear side, दुश्मन पीछे से आ रहा है, पीछे कर रहा है, और लोग रो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है. People are crying, people are murmuring. In the midst of all this, the man of God will stand at God's command and stretch forth his right hand with the rod of God. Amen. परमेश्वर का लाठी लेकर, हाथ में लाठी लेकर, हाथ उठाते हुए वो खड़ा रहेगा. The whole night I believe Moses stood there till the last Israelite passed by. जब तक आखिरी परमेश्वर का संतान उस पार नहीं हुआ, तब तक मूसा हाथ उठाकर खड़ा था. ऐसा मैं विश्वास करता. God needs the man who will stand up, amen, with the rod of God held high in his hand. परमेश्वर ऐसा मनुष्य को ढूंढता. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा को लेकर, amen, परमेश्वर का आदेश को लेकर
खड़ा रहने वाला, दुश्मन पीछे से आने दे, लोग कुड़कुड़ाने दे, may people be grumbling and may the enemy be advancing from the rear. He looks for a man who will stand up boldly and on the word of God, amen, stretching forth the rod saying, it shall be so. वैसा होगा जैसा परमेश्वर ने कहा है. How comforted God would have been on that night. Hallelujah. कितना खुश हुआ, परमेश्वर जागते रहा. God kept vigil on that night. That is what we read. हम आगे बढ़ता है. परमेश्वर के दास को देखकर वो अति प्रसन्न हुआ. 17 अध्याय 17th chapter of Exodus 8 and 9. तब अमालेक के आकर रफीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे. To add to their miseries, Amalek came and fought with Israel at Rephidim. अकारण आया अमालेकी लड़ने के लिए. अभी अभी छुटकारा पाकर आ रहे हो लोग, तो उसके सामने किया. लेकिन मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, बाहर जाकर अमालेकियों से लड़. मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. Don't you be afraid. Don't you worry. You will face them and conquer them. Hallelujah. तुम अमालेकी की सामना करेंगे और उसको हराएंगे. मैं पर्वत पर खड़ा रहूंगा. On my higher place I will stand. On the glory spot I will stand. महिमा की ऊंचाई में मैं खड़ा रहूंगा. परमेश्वर की लाठी पकड़कर खड़ा रहूंगा. जीतोगे परमेश्वर के जन. Oh, blessed are such congregations. Blessed is the church of God, where mighty men and women will stand with the rod of God in their hands. Hallelujah. On the heights. ऊंचाई में खड़े रहेंगे. परमेश्वर के लाठी उठाते हुए खड़े रहेंगे. परमेश्वर को वचन उठाते हुए, वायदाओं को मजबूती से पकड़ते हुए, cleaving to every promise of God and believing every word that God has spoken. They shall stand as mighty towers. ऊंचे गढ़ के तरह वो लोग खड़े रहेंगे. अमालेकी हो या गर्जने वाली समुद्र हो, विजय सुनिश्चित है. परमेश्वर को कितना आनंदित किया मूसा ने और यहोशू ने उस दिन. हम आगे बढ़ता. वी लुक इनटू 21st chapter. 21वें अध्याय में जाता, 9वां वचन पढ़ता. It seems as if we will read all the verses from all the chapters. I won't bore you so much. I will finish within the time and the rest I will leave to you to read. 21 का 9. यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक्सोडस 21:9 पढ़ रहा हूं. यदि उसने उसका बेटा को विवाह कर दिया हो तो उसे बेटी का सब व्यवहार करो. तो ये मैं गलत लिखा है, माफ करना. तो वहां से आगे बढ़ते. अच्छा हुआ, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. विल मूव ऑन फ्रॉम देयर टू ड्यूटेरोनॉमी. और वो ढूंढने के लिए क्या था, वो ढूंढने के लिए हमारे पास समय नहीं है. सो वी मूव ऑन टू 31. We have plenty of verses to compensate. हम 31 में आते हैं. 7 से पढ़ता है. तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने का कहा था तू जाएगा. तू इनको उसका अधिकारी कर देगा. Moses would encourage Joshua. Not only would appoint him, not only will bless him, but will also encourage and strengthen him, saying, you will go, be courageous, be bold, be strong. The Lord is going to use you, hallelujah, to inherit the land sown to our forefathers. हमारे प्राचीनों के लिए के साथ उसने जो वाचा बांध कर कहा, ये देश में दूंगा, वो तू दिलाएगा. The Lord is going before you. The Lord goes before you. वो तुम्हारे संग संग चलता है. हालेलुया. आगे आगे चलाने वाला परमेश्वर है. यहोवा तुम्हारे संग संग चलता. He will be with you. He will not leave you. Do not fear. इतना ही नहीं, 9वां वचन में पढ़ता, मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को जो यहोवा की वाचा का संतुक उठाने वाले थे और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी.
Not only would he appoint and encourage Joshua, he would write down the word of the Lord, the words of God, and hand it over to all the priests and all those in authority. मूसा लिखेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, हालेलुया, जारी रहना है. Amen. God's work should go on. Amen. The fire on the altar should keep burning. The lamp in the house of the Lord should be burning. परमेश्वर के भवन के जो दिया है वो जलते रहना अवश्य है. वेदी के ऊपर का अग्नि जलते रहना अवश्य है. परमेश्वर को उद्धार का काम प्रगति पाना अवश्य है. Amen. Amen. He found another man, Joshua, and Moses would prepare the hearts of other people as well to stand with him and to walk ahead and inherit the land promised to them, to their forefathers. We move on from there. We move on to Joshua, Paladhyay. How would God commission Joshua? परमेश्वर को एक मनुष्य मिला, यहोवा के दास. मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. मेरा दास मूसा मर गया है, लेकिन मैंने तुझको देखा. I see you and I have chosen you. Hallelujah. You and all these people will go ahead and I will give the land promised to Abraham to you. Hallelujah. You will give to them. You will go ahead. How comforted God was. Hallelujah. परमेश्वर को कितना सांत्वना मिला है ये बात से. मूसा के मृत्यु से सब कुछ मिटता नहीं है. Everything was not lost in the death of Moses. Moses had prepared a successor. Amen. मूसा ने तैयार किया था आगे चलने के लिए, लोगों को चलाने के लिए, पुरुष को तैयार किया था. Amen. Amen. He would gladden the heart of God. Moses and Joshua together would have comforted the heart of God that his work will continue. God's people will not be wiped off. परमेश्वर के जन मिटाया नहीं जाएगा, अग्नि बुझाया नहीं जाएगा. हम आगे बढ़ता, हम पहले शमूएल के पुस्तक में चले जाता. हम एक क्रम में शायद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं. पहला शमूएल पहला अध्याय, 1 Samuel chapter 1 27-28. For this child I prayed. The Lord has granted me my petition. Therefore, I have lent him to the Lord. यही बालक के लिए मैंने प्रार्थना की, यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं. हना, हालेलुया. एल्काना कैसे दंपतियां है, परमेश्वर से मांग के लिया, ये पुत्र जरूर मिला कितने सालों के बाद, और वो पुत्र को सदा के लिए परमेश्वर के भवन में एक हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहने के लिए वहां भेजता. परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल करने के लिए, to serve the Lord in the house of the Lord and to remain there as a green olive tree in the house of the Lord. Hallelujah. दिया न बुझाए जाए एक मनुष्य को. आमेन. उन्होंने बांट दिया परमेश्वर को. They would gift their only son then to God. एकमात्र संतान था वो समय में उनका, और उन्होंने परमेश्वर को बांट दिया. Hallelujah. They gave such a beautiful present to God that would have comforted him, that was so glad in his heart. Hallelujah. दूसरा अध्याय में हम पढ़ते 12वां वचन, 2nd chapter 12th verse. एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. अब आप जान सकते परमेश्वर कितना नाराज.
हम उत्पत्ति पुस्तक से पढ़ते परमेश्वर पछताता, यहां भी परमेश्वर पछताने पर था। एली मरने पर है, बुढ़ा हो गया, दर्शन नष्ट कर दिया, स्वर्गीय वाणी नहीं सुन पाता। Eli was old. He was unable to hear God's voice. He had forfeited our heavenly visions, and now his children have gone wayward. They did not know God. वो समय में एक लड़का मिला, amen. वो टाइम में शमूएल मिला, then you will appreciate how much God would have been comforted, amen. अभी हमें पता चलेगा कितना उसको शांति मिला, परमेश्वर को कितना सांत्वना मिला शमूएल को पाकर। 15 अध्याय 15 चैप्टर 1 शमूएल, पहला शमूएल 15 अध्याय का 10-11 पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। The word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul the king. देखो, और पछताता। God is once again regretting that he made Saul a king at all. बहुत पछता रहा हो, बहुत दुखी है। उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, ऐसा वो कहता। और शमूएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा। Samuel was angry and he cried to the Lord all night. He would share the heart of God. Such people would comfort God. परमेश्वर हृदय के बोझ को बांट लेने वाला है यह है जुआ उठाने वाले लोग। These are the people who will carry, amen, the yoke of Christ. Hallelujah. प्रभु को, परमेश्वर को कितना खुशी मिला, कितना सांत्वना पाया होगा वो। हालेलुया। एक शमूएल मिला उसको साथ देने के लिए ऐसे संकट की घड़ी में। In the hour of such sorrow, there was one Samuel standing with God to do his blessed will and purpose. वो हम 16 अध्याय में देखते हैं, 16 chapter 13th verse, 16 अध्याय का 13वां वचन। शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, दाऊद का। Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day onward. Amen. उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। Amen. Saul would have frustrated God, but here is a man of God, a man after God's own heart. Hallelujah. On whom will rest the Spirit of the Lord, the mighty, powerful Spirit of the Lord. शाऊल ने परमेश्वर को नाराज किया, उसको हृदय को तोड़ा उसने। लेकिन यहां देखो परमेश्वर के हृदय के प्रकार के मनुष्य दाऊद, शमूएल के द्वारा जो परमेश्वर का दास था, उसके द्वारा अभिषेक किया गया, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा अति सामर्थ्य से उतर कर आएगा और बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। These are the people who will delight the heart of God. Amen. ऐसे लोग परमेश्वर को आनंदित करता, परमेश्वर उसे सांत्वना पाते हैं। Amen. 17 अध्याय से पढ़ता 32 पहले, 17 chapter 32nd verse first। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. परमेश्वर के लोग ऐसे कांपते हुए खड़ा है। God's people kept trembling before this mighty Goliath. गोलियत के सामने ऐसे डर के मारे पूरे इस्राएल की सेना खड़ा है। एक लड़का आता, अमैन अमैन, वो कहता मैं लड़ूंगा, हिम्मत न हार, डोंट बी अफ्रेड, ओ किंग, आई विल गो एंड फाइट दिस फिलिस्टाइन हीरो। अमैन, मैं लड़ूंगा।
ऐसे हिम्मत करने वाला कोई मिले, परमेश्वर के जन के सम्मुख खड़ा रहने वाला कोई मिले, मूसा के तरह कोई मिले, यहोशू के तरह कोई मिले। हालेलुया। अमालेकी से लड़ने के लिए यहोशू निकलता। आमीन। ये फलिस्ती राक्षस को गिराने के लिए दाऊद निकलेगा। आमीन। डोंट बी अफ्रेड। दीज आर द पीपल हु विल डिलाइट द हार्ट ऑफ गॉड। ऐसे लोग परमेश्वर को आनंदित करता। आमीन। उसका 47वां वचन भी पढ़ेंगे। विल रीड 47th verse as well। ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। लुक एट दिस मैन, ही डज नॉट वांट टू टेक द क्रेडिट फॉर दिस। He doesn't boast about his boldness. Amen. He doesn't boast about his capability. वो अपने कामयाबी के विषय में कुछ नहीं कहता, हिम्मत के विषय में भी नहीं कहता, उसके गहरे विश्वास के विषय में नहीं कहता। He gives all the glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को देकर कहता, You and all this assembly will know that the Lord saves not with sword and spear. The battle is the Lord's. He will give you into my hand, to our hand. ऐसा कहता हूं, मेरा हाथ नहीं कहता, our hand. Amen. He honors the people of God. He cares for them. And he cares for the glory of God. परमेश्वर की महिमा उसके लिए परम प्रधान है और परमेश्वर की जन की सुरक्षा उसके लिए मुख्य है। Hallelujah. Such people will gladden the heart of God, comfort the heart of God. Hallelujah. इतने दिन तक परमेश्वर के लोग ऐसे तरतराते हुए खड़ा था। It would have wounded the heart of God. परमेश्वर का मन को कितना खेदित कर दिया उन्होंने ऐसा कहते हुए। एक भी पुरुष नहीं था खड़ा रहने के लिए। मैं बोलो, उनका आश्रय रथों पर और घोड़ों पर था और हथियार पे था। Though they were people of God, they trusted in chariots and horses, and in their weapons, and they found them wanting in all these areas. ये सारी बात में वो दुश्मन के सामने तुच्छ था, कम था, इसके लिए वो लोग डरते थे। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद कहता, परमेश्वर को ये यहाँ की इंसान की तलवार की कोई जरूरत नहीं है, लड़ाई उसका है। हालेलुया। वो लड़ेगा और तुम्हें हमारे वश में कर देगा, यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। How we desire to have such leaders, such elders standing amongst us. हमारे बीच में ऐसे प्राचीन लोग खड़े हो जाए। आमेन। ऐसे परमेश्वर के भक्त लोग खड़े हो जाए, ये हमारी चाहत और प्रार्थना है। From there we jump to 1 Chronicles. हम पीछे वापस आएंगे। पहले इतिहास के पुस्तक में जाता, 28वां अध्याय में नजर डालता, 10-11 पढ़ता। अब चौकस रहो, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांध कर इस काम में लग जा। He is instructing his son Solomon, David. David is on his way out. He is going to rest, but he will prepare the next generation. Hallelujah. ये वचन में पढ़ा, I will prepare the next generation so that the glory will be seen to generations to come. महिमा प्रकट होगा आने वाली पीढ़ियों में। सही वेदी बनाया जाएगा, सही अग्नि जलाया जाएगा। Hallelujah. The right fire will be burning on the right altar. Amen. The lamp of God will not be put out. There will be plenty of supply of oil and fresh wood. Amen. Amen. ताजगी से तेल बहाया जाएगा। आमेन। और ताजगी से लकड़ा लगाया जाएगा। वेदी पर सही अग्नि जलते रहेगा। बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसे लिखा है कि उसने सारे बात उसको बताया, सिखाया, सारे प्लान उसको दे दिया। He handed over the blueprint to him. Whatever God had given to David, he would pass it on to his son, that the work of God should go on. Hallelujah. The redemptive work should go on. The prayers of God's people will get answered again. पवित्र जन की प्रार्थना स्वीकृति पाएगा, उत्तर भेज दिया जाएगा। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। हम पहले राज्य के पुस्तक में आता, 19वें अध्याय में नजर डालता। We come back to 1 King and look into 19th chapter and verses 19-20.
पहला राजा 19वां अध्याय 19-20। तो वहां से चल गया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12 के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। Elijah departed from there as commanded by God, as ordered by God, and he will go, and as instructed, he will anoint Elisha. So Elisha would follow him. Amen. Usko he will anoint, who was plowing with 12 yoke of oxen, a well-settled man, a rich man, and a very, very hard-working man. एक ऐसा संपन्न व्यक्ति था और कड़ी मेहनती था। वो काम कर रहा था खेत में, लेकिन परमेश्वर के कहने के आधार पर जो मरने के लिए पेड़ के छाव में अपने आप को लिटाया था, वही वहां से उड़कर परमेश्वर के कहने पे जाएगा और एलीशा समान पुरुष को हालेलुया अभिषेक करेगा। He will throw his blanket onto him, amen, his cloak onto him. वो चादर डाल देगा उसको ऊपर, ऐसा ऊपर था। आमेन। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, आमेन, ऐसी अवस्था में खड़े होकर परमेश्वर के कहने पर भाग के जाने वाला चाहिए। He looks for people who will arise and run at his command, hallelujah, and do what he wants him to do. परमेश्वर जो चाहता है वही करने के लिए उसके कहने पर भागने वाला उसको अति प्रसन्न करता। वहां से और वचन हम पढ़ सकता 20 में हम करते हैं कि तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा एलीशा। हालेलुया। देखो, Elisha would leave the oxen and would run after Elijah. Look at this man. They both would gladden the heart of God. What a comfort it was to God. The work of God will continue. Amen. The right altar will be made and the right fire will be lit. सही वेदी तैयार किया जाएगा, सही अग्नि जलता रहेगा। Let the fire continue to burn. Amen. Let the fire be kept aflame. प्रज्वलित बने रखे, परमेश्वर की अग्नि कभी नहीं बुझाया जाए। आमेन। सही अग्नि वेदी पर जलते रहे, दिया निरंतर जलते रहे। आमेन। और दूसरा राजाओं का पुस्तक में नजर डालता, दूसरा राजा 22वां अध्याय, 2 किंग 22nd चैप्टर, दूसरा वचन। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला। और उसने ना तो दहिनी और ना भाई और मूडा। लुक एट दिस किंग योशियाह, जोसाया द किंग, वाज एनथ्रोन्ड एट द एज ऑफ 8। जब 8 वर्ष का था वो राजा बन गया, लेकिन उसका माता का नाम वहां दिया है, उसके माता था। Blessed are such people with godly mothers. ऐसे लोग धन्य हैं, हमें, जिसका माता परमेश्वर को भय मानते हो। हमें। और देखो, उसने दाऊद के मार्ग में चला, उसका मूल पिता दाऊद। He did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the way of David his father. Amen. Amen. The fire burns, it glows. Amen. The glory is not departed. महिमा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वेदी पर अग्नि जलते रहेगा, परमेश्वर की दिया जलता रहेगा। ऐसे वहां से पढ़ता है, उसका 11वां वचन पढ़ता है कि व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। When the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. हमने देखा मूसा ने लिखा था, लिख कर वो पुस्तक सौंपा था, लेकिन वो नष्ट हो गया। हमें decades have gone by, कितने बरस बीत चुके, परमेश्वर का नियम का पुस्तक नहीं दिखाई दे रहा था। योशिया के समय में उन्होंने उसको ढूंढवाया और मंदिर में यह पाया गया और पवित्र शास्त्र दोबारा पढ़ाया गया। The word of God will be once again read in the hearing of the king, and he would repent first. बाकी सब इतिहास आप जानते हैं। Then the rest of the story you know.
He will call the people to repentance. He will get the temple repaired. He will build the altar once again. And there will be sacrifices offered once again. Hallelujah. The Passover feast will be celebrated once again. Hallelujah. वो सब चीज को ठीक करेगा. He will get the temple of God repaired and cleansed and sanctified. The vessels will be sanctified. And the priests will be sanctified. They will all repent. Hallelujah. They will erect the right altar. And they will sacrifice the right sacrifice and the right fire. Hallelujah. Such people gladden the heart of God. Such people comfort the heart of God. 23 उसका 23वां अध्याय का पहला 3 वचन. राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरानियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया. तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोग संग लेकर यहोवा के भवन में गया. उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई. तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं चितवनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा. सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई. All the people joined in the covenant. The king will stand against a tower, not a tower, but a pole, and you'll enter into a covenant with God. What's about it? Leaning against a pillar. He would listen to the word of God read in the hearing of all the people. And he will surrender his life. He will rededicate. He will consecrate himself to obey every word. And people said, Amen. Hallelujah. Kitna prasanna hua Parmeshwar. We move on to 2nd Chronicles and 36th chapter. दूसरे इतिहास का पुस्तक में जाते 36वां अध्याय में नजर डालता और उसका 23rd वर्स पढ़ता. Thirty-sixth chapter, 23rd. फारस का राजा कुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज मुझे दिया है. उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा. इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वो वहां रवाना हो जाए. Look at this man, a Persian king Cyrus, who will gladden the heart of God, who will comfort the heart of God. Amen. Who was so prompted by the Spirit of God that he will allow the people of God to go back to the burned city of Jerusalem and erect its walls. Amen. And repair the temple and the altar. कहते जो कोई चाहे जा सकता है. पढ़ने के लिए समय नहीं हमें यरूशलेम को जाना. एसरा के पुस्तक में वही पढ़ता, यही बात कहता. खुसरू परमेश्वर का दास बन गया. Amen. When we found none among his people to stand up, he found Cyrus the king. Amen. And he would use him. And that man would rise to the occasion, glad in the heart of God, do God's blessed will, and comfort God in this crisis. ऐसे संघर्ष की घड़ी में एक साइरस राजा खुसरू खड़ा हो जाएगा. जादी का राजा, पर्शिया का राजा खड़ा हो जाएगा. परमेश्वर के हित को पूरा करेगा. परमेश्वर के हृदय को आनंदित करेगा. दोबारा यरूशलेम शहरी बनाया जाने के लिए, दोबारा मंदिर बनाया जाने के लिए, वेदी तैयार किया जाने के लिए, सही अग्नि जलाने के लिए, वेदी पर सही रीति से दीपक को जला कर रखने के लिए. That the lamp of God will be kept burning. That the fire of God will be burning continuously on the altar of God. He raised a man, a king, a Persian king called Cyrus. Hallelujah. ऐसे अनेक लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता, आनंदित करता. मैं हूं क्या उनमें? ऐसे लोगों में मैं पाया जाऊंगा क्या? Will I be found among such people? God says, the fire on my altar should not go out.
परमेश्वर कहता वेदी पर से अग्नि बुझना नहीं चाहिए, दीपक मंदिर में जलता रहना चाहिए, तेल की कमी नहीं होना, लकड़ा की कमी नहीं होना। देयर शुड नॉट बी एनी डॉट ऑफ वुड, नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल, तेल की कमी नहीं होना, लकड़ा की कमी नहीं होना। मैं हूं प्रभु, मैं आता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। May I gladden in the heart of God. May I be among those who will please Him, give Him pleasure and comfort. उसको सांत्वना देने वाला, आनंदित करने वालों में मैं भी गिन लिया जाए, ये मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। This will happen only because of the help of the Holy Spirit. May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे, यीशु के नाम में आमेन, आमेन।